Good evening, everybody. Hello, sir. Good evening. Good evening. Hi, Siddharth. Hello, Neha. Hi, Surya. Hi, Faustina. Good evening. चलिए, shall we start? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. यस सर, यस सर. ऑल बैक फुल सर. ओके. सो कैसी रही आद्या मैम की क्लास? आप लोगों ने मेरा टाइम स्लॉट ले लिया. It was good, sir. Got some idea on Right. Yeah, I heard the recorded thing, which we will upload it later on. It was quite interactive. You guys have plenty of questions, and I'm sure you still have plenty of questions, right? ओके. चलो शुरू करते हैं. वन सेकेंड इसको मैं. So anybody, because um, you all are common in this UCC session. So where were we last time? हमने कहाँ तक इसको कवर कर लिया था? I think the last, we had discussion in the chat group, right? So it went on the Christianity. Right, with regards to Christian personal laws, right? Minor Yeah. were discussing. Yeah. Yeah, so I was back in there in, I had to go Roorkee for some work, and there was very pathetic connection. And fortunately, it was raining, and then my voice was also breaking when I was sending you guys a audio thing. So, nevertheless, आज हम करते हैं. So, I hope am I audible to everybody? Yes, sir. It's clear. ठीक है. One second. And you can also have a good look on the screen, right? Where am I writing here? So, Payal. Yes, sir, audible. Hello, Payal. We have just started, okay? Good evening, Good sir. evening. We have just started. I mean, just. Okay, so last time we were covering minorities civil laws. Under that, हमने Christianity को cover किया. I mean Christianity, Parsis and Jews, right? In that, हमने Indian Divorce, I think Indian Divorce Act, Indian Succession Act, ये सब check किया था. And I was in the last example of what was the name? John Villamottem. ठीक है? So that judgment which I was giving you, do you remember John Villamottem? He wanted to give the property to his wife, but according to section 118, उसमें दो एस्पेक्ट थे जिसमें वाइफ का तो नाम ही नहीं था. क्लोज रिलेशन को ही क्रिश्चियनिटी में उस टाइम तक प्रॉपर्टी राइट्स थे. क्लोज रिलेशन में ब्रदर्स एंड और अदर रिलेटिव्स, वाइफ नहीं थी. सो दैट वाज द केस. ठीक है. थर्ड वाज with reference to Indian Divorce Act in Christianity. So, Pragati Varghese, have you heard about this name? Pragati Varghese. This happened in 1997. इसको थोड़ा सा रेड करते हैं.
Okay, and I'll quickly tell you guys what happened here. So, so through Indian Divorce Act, she reached to court for divorce and against her husband. Husband wife में कुछ कहा सुनी हो गई होगी, and then finally she wanted to get a divorce from her husband. Her husband name was Cyril. Yes, Cyril. That's the way they pronounce Cyril George Verghese. Cyril George Verghese. And so basically, Indian Divorce Act के सेक्शन 10 में ये लिखा है that if a husband found, so remember this thing because this since we are covering under the social GS2 paper, social justice and governance part, so these are few very very tricky and important judgments, ठीक है, and the cases as well. So यहाँ पे हुआ section 10 में ये लिखा था that first, if husband found wife in adultery, अगर husband को पता चलता है that उसकी wife का कोई illicit relation है, नाजायज संबंध है किसी गैर पुरुष के साथ, okay, illicit relationship, then a husband can give divorce to wife. ये मैं इंग्लिश लॉ, क्रिश्चियन लॉज के तहत बता रहा हूँ आपको, ओके. सो जस्ट बी क्लियर दैट वी आर नॉट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग हिंदू कोड बिल. दिस इज माइनॉरिटीज, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, विच इज क्रिश्चियन. अभी वी विल कम ऑन पारसीज एंड जूज एज वेल, ठीक है. सो she was a Christian. The both were Christian, belongs to Christianity, Christian family. And point number 1 says that if his husband found wife in adultery, then he can divorce. और वो divorce is acceptable. ठीक है. Second था section 10 की हम बात कर रहे हैं, that if wife found husband in adultery, Sir, right? Yeah. divorce is accepted without any proof. Where? Here, sir, in point number 1. हाँ, यहाँ पे प्रूफ नहीं चाहिए. मीन्स अगर किसी तरह का भी क्लेम किया जाता है तो उस क्लेम को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा. Right. Yeah, I mean, it's simple here. अभी वो proof वाला वो दूसरे में आएगा, वो थोड़ा complicated है in Muslim personal law, okay? So here only if they found illicit है, of course, तो this is going to be accepted here. यहाँ पे if wife found husband adultery, तो wife को prove करना पड़ता था that कोई violence हुई है कि नहीं. Is there any violence or cruelty? मतलब if her wife, if she goes to court and she files a case, plea in a Supreme Court or any other court against divorce, और उसके साथ कोई वायलेंस नहीं हुआ है, कोई क्रूअल्टी नहीं हुई है, तो उसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा. यहाँ पे एविडेंस इनको दिखाना पड़ेगा कि ये वायलेंस हुआ है, यहाँ मुझे मारा है, या फिर दिस इज क्रूअलिटी और समथिंग हैज बीन डन अगेंस्ट इट. ओके, सो what happened? Hindu Code Bill में, do you remember Hindu Code Bill में under which section the divorce this clause has mentioned? Or maybe a Hindu Code Bill, under Hindu Code Bill, which section states that talks about divorce? Any idea? हमने बात की थी उस दिन. Simultaneously, we should revise or reiterate things which are very identical, तो revise होती रहेंगी. So that was section 13, remember? ठीक है. और वही स्पेशल मैरिज एक्ट में divorce is mentioned in section 28. ये 28 ऐसे लिख देता हूँ. Okay, and
अभी हम आगे पढ़ेंगे। पारसी मैरिज एक्ट में डाइवोर्स इज मेंशन्ड इन सेक्शन 32 32। यहाँ पे सेक्शन 10 है। ये दो चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। ओके, सो दिस मैडम, व्हाट्स द नेम, Miss Varghese, Pragati Varghese, she filed a plea in the Supreme Court, and the Supreme Court, she said that my fundamental rights are being infringed. Okay, Article 14 and Article 21 के खिलाफ है। Okay, वो एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रही हैं। Just because of this, she wanted to, she want separation from her husband. But what is this? That if a husband wants, then he can. But if I want, I cannot be, because I have to prove violence or cruelty against it. ये कहाँ की इक्वालिटी है? ओके, सुप्रीम कोर्ट को ये बात में समझ में आ गई, एंड सुप्रीम कोर्ट gave the judgment in the favor of प्रगति वर्गीस, एंड वो सेक्शन 10, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 10 को ही खत्म कर दिया। ओके, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के सेक्शन 10 को द सुप्रीम कोर्ट मेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिलीटेड। ठीक है, सो राइट टू डिवोर्स इफ हस्बैंड फाउंड्स इन एडल्ट्री, ये कह के that women are in under Christian law, that women has similar rights, similar equality, the same way the men has. And here to equality और उसके पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्शन मिल गया अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21। ठीक है, तो क्रिश्चियन, वन सेकेंड, कोई आया, सोहेब। Hi Sohaib, so we have just started, and I think I have finished almost Christian personal laws. ठीक है, एक और था इसमें, जब ये एक्ट आया 1997 में, when Supreme Court gave this judgment, ठीक है, so immediately I think उस टाइम 2001 में I think there was another small changes were made in here. इसमें ऐड किया था सेक्शन 10A। उस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एंड सेक्शन 10 तो इक्वालिटी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दे दी थी। ओके, 10A ऐड कर दिया था, एडिशनल यहाँ ऐड कर दिया था, दैट मतलब आपसी सहमत से, यू नो, विद म्यूचुअल कंसेंट ऑल्सो दे कैन सेपरेट। ओके, लेकिन 2 years की जुडिशियल सेपरेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 years की जुडिशियल सेपरेशन होगी। पोस्ट दिस तलाक इज डन। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हस्बैंड या वाइफ कोई भी अगर क्रिश्चियन है, इफ ही इज फाइलिंग अ प्ली इन सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट फॉर डाइवोर्स, सो ऑफ कोर्स सहमति से हो सकता है, नहीं तो फिर कोर्ट के थ्रू भी हम जा सकते हैं, और इफ द डाइवोर्स इज ओके, देन दे हैव टू बी सेपरेटेड फॉर 2 years, एंड देन द कोर्ट विल अनाउंस दैट डाइवोर्स डिक्री। ठीक है, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, दैट केस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग। सो बेसिकली क्या नाम था इनका, सो दिस मैन एल्बर्ट एंथनी, इसका नाम सुना है? यस, नो? 2015 का बहुत ही पॉपुलर केस था, एल्बर्ट एंटनी। अरे तुम लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी, या फिर मैं ही बोल रहा हूँ?
Surya, Chandrai, Payal, I mean, यस सर, आवाज आ रही है सर? ओके, हाँ, आप लोग हाँ ना करते रहिए तो समझ में आएगा, फिर हम लोग बैठे हैं क्लासरूम सर में। टॉपिक बहुत गंभीर है सर, बहुत मतलब डीपली सोचना पड़ता है इस पे। हाँ, तो हाँ ना भी बोलते रहिए ताकि ऐसा लगे कि हम क्लास में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि भाई सत्संग चल रहा है। सत्संग तो नहीं है ना ये? नहीं सर, सर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी है राइट। और रियल चीज़ें रिलेटेड है सर। तो थोड़ा सा माइंड को जो है प्रेशर लग रहा जाता है सर। नहीं, प्रेशर डाल के मत पढ़िए, एकदम खुले दिमाग से पढ़िए। और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी हो, XYZ, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हों, आप ये टॉपिक निष्पक्ष होके, ओके, अनबायस्ड होके समझिए। आप पहले से ही कोई ओपिनियन और कोई व्यूज़ मत लेके आइए, अदरवाइज जब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे देन यू विल बी अगेंस्ट समथिंग और फॉर समथिंग। ठीक है? सो मैं अगर हाँ ओके सर। सर जी, सर ये इसके बाद जो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ चलाइएगा तो उसमें तो सर ऑटोमेटिक जो है इस तरह का कुछ है कि बिना मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल सर ऐसा ऐसा चीज उसमें है कि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चन आप पूछिए, आई डोंट हैव एनी क्वेरी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपना ओपिनियन पहले से मत फॉर्म करके रखिए कि ये ही सही है, कि हमारा ही धर्म सही है, या फिर ये जो पैट्रियार्की सिस्टम ही सही है, या फिर ये लॉ सही है, या फिर जो कंजर्वेटिव थिंग थी वो सही है। नहीं। तो again, I am reiterating that do not form your opinion unless you don't know the entire fact. Let us know the entire fact first, and then we will discuss, review, analyze, and then criticize. ठीक है? यस सर। चलिए, थैंक यू। सो एल्बर्ट एंटनी, उन्होंने यही कहा कि um, ये जो अमेंडमेंट हुआ था ना, इंडियन डाइवोर्स एक्ट ऑफ 2001 में, जो अभी हमने बात की थी लास्ट, जिसमें सेक्शन 10A ये कहता है कि डाइवोर्स तो ले लो बट 2 इयर्स का जुडिशियल सेपरेशन होगा। ये केस इसी पे था दैट एल्बर्ट एंटनी ही वांटेड अ जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम हिज वाइफ, एंड वाइफ वो आल्सो शी वाज ओके विद दैट। ठीक है, आपसी सहमति से एवरीबॉडी वाज ओके। ही आस्क्ड द कोर्ट दैट व्हाई 2 इयर्स, 2 साल क्यों, जब सर सर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हाँ सर। 1977 में सेक्शन 10 को जो हटाया गया और उसके बाद 10B बताएं ए या ए बताएं? ए 10A को फिर 2002 में 1 ऐड में, किया गया है, 1 में ऐड किया गया। ओके सर, ठीक क्लियर है। सर। और ये एल्बर्ट एंटनी का जो मामला है वो है 2015 का। ठीक है। सो आई मीन एल्बर्ट एंटनी एंड हर वाइफ दे वर ओके टू सेपरेट, सब कुछ ठीक था। एंड 2 साल के जुडिशियल सेपरेशन, ही वॉज नॉट ओके विद दैट। वाई? बिकॉज ही स्टेटेड दैट, जज साहब एक बात बताइए कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसमें सेक्शन 13B, उसमें तो आप लोगों ने जुडिशियल सेपरेशन 1 ईयर लिखा है। ठीक है, हम हिंदू जो हिंदू कोड बिल का हिंदू मैरिज एक्ट है, आप सबको याद होगा, इन दैट सेक्शन 13B सेज दैट 1 ईयर का सेपरेशन इज एनफ एंड देन कोर्ट विल इशू द डाइवोर्स डिग्री। ओके। स्पेशल मैरिज एक्ट, उसने ये भी कहा कि आप ये भी बताइए, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, जो 1954 से हम मानते हैं, उसमें सेक्शन 28 में, अभी हमने रिसेंटली बात की थी उसकी, सेक्शन 28 में 1 ईयर वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है दैट आफ्टर 1 ईयर ऑफ जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट कैन इशू डाइवोर्स डिग्री। एंड इवन पारसी में भी, पारसियों के डिवोर्स एक्ट में भी 1 ईयर ही मेंशन है। देन व्हाई इन क्रिश्चियन सिस्टम दिस 2 ईयर केम? दिस इज ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनइक्वालिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे उस जज का नाम नहीं याद रहा है, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर जज रहे वो 2015 में, अरे नाम ही भूल गया मेरे को। तो ही सेड दैट द
इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस गाय, ये एंटनी साहब की इंटरप्रिटेशन एकदम बढ़िया है, और 2 इयर्स को ख़त्म करके 1 साल करने की बात कही है सरकार से। अभी दिस इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड एज़ लॉ, बिकॉज़ दिस ये रीसेंट का है, 2015 का है। So the Supreme Court has asked the government to think about it and make some changes, because this guy is absolutely right. We have to be uniform in these things. And he also said that यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी आप लोग सोचिए, वरना कब तक ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। ठीक है? यस सर। तो बेसिकली ये टोटल अभी क्रिश्चियनिटी पे केस था। देयर हैज़ नॉट बीन एनी अमेंडमेंट येट। द पार्लियामेंट इज इन मेकिंग। 2017 में इसका हुआ था, बट किसी कारण की वजह से, बिकॉज दे आर इम्प्लीमेंटिंग फ्यू मोर थिंग्स इन इट, सो इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड सून, आई बिलीव। जिस हिसाब से अभी सेशन चल रहे हैं और बिल्स पे बिल्स रिलीज हुए जा रहे हैं, पास हुए जा रहे हैं, आई होप वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? सो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। सो अल्टीमेटली आर्टिकल 15 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल कर दिया, दैट्स इट। ठीक है? एक चीज़ में आप लोगों को एक क्वेश्चन है मेरा, इफ़ यू गाइस कैन हियर मी क्लियरली, देन आई वुड लाइक यू टू आइदर राइट और आंसर मी इन आवर नेक्स्ट सेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अरे ये क्या हो गया? Since we have almost covered 70% of our topic, ठीक है, from history of UCC and then Hindu code bill and then Christianity को cover किया, ठीक है, ये सारे almost 60-70% cover किया है। Tell me one thing, अभी नहीं, note कर लो आप लोग, what's the difference between 19th century's laws and 21st century's laws? Or in another way, what societal progression सोसाइटल प्रोग्रेशन कह सकते हैं, या फिर प्रोग्रेसिव भी, या फिर डेवलपमेंट 19th सेंचुरी के लॉज में हुई थी और 21st सेंचुरी के। व्हेन आई से 19th सेंचुरी, विच मीन्स 19th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। इसको आप लोग देख लेना। उस टाइम का जो आईपीसी था, and what's the difference between IPC of 1860 and IPC of 2021? Which major thing has happened? Okay. उस टाइम की मोरालिटी और इस टाइम की मोरालिटी में क्या फर्क था? सर डायमेंशन क्या रखेंगे? दिस इज अ फ्री एंड ओपन एंडेड डिस्कशन क्वेश्चन। आप हमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ ऑप्शन, इट्स जस्ट फॉर अ डिबेट। ठीक है? दिस इज 21st सेंचुरी। Basically, the base of the question what I wanted to ask, that what were the thinking ideology of even Indians or English people, that they made those laws in 19th century, and then what changes did we make, or what changes that did the society made, that they changed their law, or they amended their law, or they repealed their laws in 21st century. The same law they have made 1860 में, और वही लॉ आज रिपील हो जा रहा है, आज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जा रहा है। सो देयर आर 2-3 लॉज, वो आप बताइएगा क्या मोरालिटी के उसमें और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ विथ रिगार्ड्स टू पारसीज।
Mm, so we all know that with regards to Hindu Code Bill, 1950 1950 तक 1956 में the entire code bill was introduced from parliament to the citizens. So यहाँ तक 1956 Hindu code bill was primarily introduced, और हिंदू में मतलब कि सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट ऑलमोस्ट हमारे लॉज यूनिफॉर्म हो चुके हैं. कुछ एक्सेप्शंस हैं विच वी हैव डिस्कस्ड. ओके, क्रिश्चियनिटी में भी हमारे लॉज ऑलमोस्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज नाउ यूनिफॉर्म. ओके, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं पारसीज एंड जूज एंड देन वील क्विकली गो ऑन मुस्लिम पर्सनल लॉ. ठीक है. सो कभी आपने एनी आइडिया, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट एनी पारसीज लॉज और जूज लॉज? कुछ कभी कोई भी एक्ट? यस सर. व्हाट? सर मतलब पारसीज लॉ जो है सर वो सॉरी इसको क्या बोलते हैं? Anybody else? Siddharth, would you like to say something? Or Surya? No, sir. I'm coming from Jews or Parsis actually. Okay. ठीक है, चलो. Let me tell you. So, we all know that Parsis are those Irani people, ईरान से जो लोग आए थे माइग्रेट होके, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक रिलीजियस परसिक्यूशंस ईरान में उस टाइम पे काफ़ी हो रहे थे. देन plenty of Irani, they moved to a safe a country which was quite थोड़ा सा religious type की थी और culturally diverse थी. So therefore they moved in major portion to India. ओके, और एनी आइडिया पारसीज की क्या पॉपुलेशन है इंडिया में? बिकॉज आने वाले टाइम पे तो पारसीज एंड जूज ये तो लग रहा है एक्सटेंट हो जाएंगे. तो एनी आइडिया व्हाट इज द परसेंटेज और द पॉपुलेशन ऑफ पारसीज इन इंडिया? यहाँ पे हम लिखते हैं पारसी, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको. सो Around 60,000, sir, as per 2011 census. 2%. राइट. सो 0.4%. राइट, सो ऑलमोस्ट 60,000 ऑलमोस्ट मैं लेके चल रहा हूँ. ठीक है, मतलब एक सिटी की जो पॉपुलेशन होती है ना उससे भी कम है ये. ओके, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक सिटी में ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख पॉपुलेशन होती है, बट 60,000 इज द पॉपुलेशन ऑफ पारसीज ऑलमोस्ट इन आवर कंट्री. और बहुत तेज तर्राक भी होते हैं, क्या मतलब, दो दे आर वेरी लिमिटेड बट दे आर वेरी वेल्दी, दे आर रिच बहुत सारे डिमेंशंस में. जैसे आप देख लो बिजनेस एंड ऑल, टाटा. सर मोस्टली तो अभी गुजरात के ही अंदर है. हाँ, महाराष्ट्र में भी है. टाटा हो गए, ये गोदरेज हो गए आपके, ये भी थे. शपूर जी वगैरह अगर नाम सुना होगा, पोलोंजी शपूर जी ग्रुप है एक, ये हैं. फिर एक बहुत ही फेमस एडवोकेट थे, नानी पालकी वाला. नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. आई थिंक द केशवानंदा भारती जजमेंट यही आई थिंक ही वाज द एडवोकेट, राइट? आई एम नॉट श्योर, यही थे. एक बहुत ही फेमस और अच्छे जज थे, फली एस नरीमन. आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज एग्जाम्पल. ओके, दीज आर लिमिटेड बट काम इनका अनलिमिटेड था. एंड जर्नलिस्ट पॉपुलर बेजान दारू वाला, एस्ट्रोलॉजर थे.
ये भी अभी रिसेंटली पास्ड अवे, राइट। सो ये ऑलमोस्ट बहुत ही, सिंस दे आर लिमिटेड, दे आर वेरी कंजर्वेटिव विद देयर कल्चर एंड थोड़े से रूढ़िवादी टाइप के थे, हैं मतलब। तो लेट्स अंडरस्टैंड इनके लॉज क्या हैं क्विकली यहाँ पे। एक तो ये हम लिख देते हैं यहाँ, पारसीज यहाँ चल रहा है, एंड देन फर्स्ट वाज Parsis Marriage and Divorce Act of 1936. Okay, second था Indian Succession Act. ये सब पे सेम चल रहा था, ओके। सो जस्ट टू लेट यू नो, क्रिश्चियंस में भी यही था, अपने उसमें भी है, हिंदू कोड बिल में भी था, ये 1925 वाला ही है। And last time when I was conducting this session via chat rooms, Saturday ko, I told you guys there were two forms of there are two forms mentioned in Succession Act. क्या क्या था, कुछ याद है? जिसमें I discussed about the interstate and intrastate. Okay, intrastate. So interstate basically वो होता है जब will नहीं बनी है, और इंट्रास्टेट वो होता है जो विल बनी है, वसीहत बनी है। अंडर दैट सेक्शन, इसमें बात कर रहा हूं मैं, इंटरस्टेट सेक्शन 50 से 56 टॉक्स अबाउट जूज एंड पारसीज, ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, याद कर लेना। इस बार मैं रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं लूंगा, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इस बार। Third is Guardian and Wards Act 1890. And what is special in these minorities, Parsis, Muslim, Christian and Jews, मैंने आपको बताया था, इसमें अडॉप्शन नहीं है, ओके। बिकॉज दीज पीपल थिंक कि इनकी जो द क्वालिटी ऑफ देयर कल्चर, वो और इनका जो भी एक पूरे धर्म की एक पूरी राशि होती है, जो पैसा रुपए होता है, दैट विल स्टार्ट गेटिंग डिवाइडेड इफ दे विल स्टार्ट अडॉप्टिंग पीपल एंड ऑल, बिकॉज अडॉप्शन से वो लीगल राइट्स देन इट स्टार्ट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, लीगल पेरेंट्स राइट, लीगल चाइल्ड राइट, इसलिए अडॉप्शन से द एंटायर माइनॉरिटी सेगमेंट दे स्टेज अवे। वाई गार्डियनशिप एंड वार्ड? क्योंकि 18 साल बाद ना बच्चे का गार्डियन पे अधिकार होता है, ना गार्डियन के संपत्ति पे बच्चे का अधिकार होता है, ठीक है। ये सिर्फ गार्डियन होता है, देख रखाव करता है टिल द एज ऑफ 18। दैट्स व्हाई दे वर ओके विद गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है। सर प्लीज प्रोवाइड रिकॉर्डिंग। इतना रिस्क क्यों ले रहे हो यार पायल? ड्राइव कर रहे हो आप और सुन भी रहे हो, और हम यहाँ पे लॉज की बात कर रहे हैं, कानून की। कानून हाथ में क्यों ले रहे हो आप? नो ऑप्शन लेफ्ट। सर कहते हैं कि वर्किंग के साथ जो है प्रिपरेशन किया जा सकता है, मगर अब लग रहा है पायल को देख करके कि पॉसिबल नहीं है। She is very hard working lady. No problem पायल, you can stay connected with me, तो मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। हाँ, जहाँ तक कोशिश हो, ट्राई टू लिसन एट लीस्ट। जैसे तो गाड़ी में चलते हैं तो म्यूजिक वगैरह रेडियो तो सुनते ही हैं, तो आज जस्ट कंसिडर दैट सिद्धार्थ सर इज ऑन इन रेडियो ऑप्शन टुडे एंड चल रहा है सिद्धार्थ जॉकी, हाँ। राइट, सो यहाँ पे पारसीज अब हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग हियर। तो बेसिकली इन राइट, यस पाल, तो पारसीज मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट जो है, अगर इसमें कोई केस आता है 1936,
अगर इसमें कोई केस, okay, should somebody wants to get a divorce, they want to separate, want to live separate from each other, there is no provision of court. कोर्ट का कोई प्रोविजन नहीं है, इनके खुद का समुदाय बैठता है, ओके, आई मीन देयर ओल मैट्रिमोनियल कोर्ट सेटअप होती है, एंड वेरी सीनियर पर्सन अंडर पारसी कम्युनिटी, दे एक्ट एज अ जूरी. सीनियर पर्सन हो गया, या पॉपुलर पर्सनैलिटी हो गई, या फिर ऑनरेबल कोई सिटीजन किसी को अवार्ड किया गया हो, वो हो गया, समथिंग यू नो who has already followed ethical standard of Parsi community since the inception. Those members were the jury who decides that separate होगे या separate नहीं होगे. ठीक है, कोर्ट का ऐसा कुछ नहीं है अभी तक. ठीक है, बेसिकली दे यूज टू आर्बिट्रेट और नेगोशिएट करते थे, एक वो उनका अपना एक लीगल प्रोसेस होता है. ठीक है, यहां तक था. नाउ एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेट मी डिस्कस हियर, विच इज इन डिस्कशन इन द सीनियर मेंबर्स ऑफ देयर कम्युनिटी एंड इन पार्लियामेंट एज वेल, लेकिन वो होगा नहीं. बेसिकली बात यह है कि यहाँ पे उसमें मैरिज से रिलेटेड 2004 में एक प्रोविज़न था जो जम्मू एंड कश्मीर का था, वो अब तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी ये फॉलो होता है, बिकॉज नथिंग इज़ इन लीगल सिस्टम हियर. तो होता क्या था यहाँ पे, बेसिकली नियम ये था. सो यू हैव टू रिमेंबर, आई एम राइटिंग नियम हियर, रूल्स नॉट लॉज, ओके, इन पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट. ठीक है, सो 1936 का, दैट इफ अ पारसी मैन, यहाँ पे हम पी लिख देते हैं, इफ अ पारसी मैन वेड्स नॉन पारसी विमेन, देन जो बच्चा होता है इसका, जो ऑफस्प्रिंग होता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पारसी, लेकिन उसकी ज़्यादा बहुत इज्जत नहीं होती है. ठीक है, मतलब नाम शोहरत कमा लिया, पैसा रुपए हो गया, देन ठीक है. अदरवाइज यस, इट इज़ एक्सेप्टेबल, दे विल एक्सेप्ट इट. इफ अ पारसी मैन मैरीज नॉन पारसी वुमेन, देन इट इज़ ओके. वहीं पे इफ अ पारसी वुमेन मैरीज नॉन पारसी मैन, देन जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, ही विल नॉट बी कॉल्ड एज पारसी. उसको समाज से ही निकाल दिया जाएगा, उसकी कोई इज्जत ही नहीं होगी उस समाज में. ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा इस बच्चे को, नो लीगल राइट्स, नथिंग, पूरा सब कुछ निकाल दिया जाएगा. तो बेसिकली दिस इज अ प्रॉब्लम हियर, अगेन कम्स ऑन वुमेन्स राइट. कौन आ गया, बीजे. हाय बीजे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Hi, hi. Yeah, yes, yes. How are you all? Very well, very well. Chalo, so I was almost covering, I mean, Uniform Civil Code under this topic, Muslim personal laws, and I have almost finished Parsi law. I haven't touched yet the Muslim one. हम Muslim पे आएंगे. Okay, okay, all right. अरे, are you also driving over? No, I'm just outside the house. Okay, ठीक है, no problem. Okay. चलो, you can mute yourself. Yeah, sure. Okay, guys. So, example के तौर पे, let's take. We all know about J.R.D. Tata, right? So, yes, कोई बोलना चाह रहा. Anybody wanted to speak? Nobody? Chalo. Let's take an example here, and it will make you guys clear. J.R.D. Tata, इनके जो father थे, the father of J.R.D. Tata was a Parsi man. ठीक है?
he initially married Parsi women, but this ma'am, she passed away. But the father of J.R.D. Tata, he married a non-Parsi women, मतलब एक फ्रेंच women से इन्होंने शादी की. ये father of J.R.D. Tata married French women जिनके बेटे थे J.R.D. Tata. And the example is evidently, it is here in front of you all, that he is reputable, respectable, and I mean, I don't have to tell you guys, okay? It's just an example. Now, दूसरा एग्जाम्पल एक अपने स्मृति ईरानी, वो किस चीज़ की मिनिस्टर हैं वो? आई एम सॉरी, भूल गया मैं नाम. अरे टेक्सटाइल. हाँ, टेक्सटाइल. She is also surname Irani, though she is a Punjabi woman. Okay, she got married with this man, क्या नाम है यार? गोविंद ईरानी? Some Irani. Zubin Irani. Okay, so she got married with Zubin Bhai. Then the marriage is successful. So remember, I have told you before that if a Parsi man marries non-Parsi women, then it is acceptable in their custom. लेकिन अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया that a Parsi woman is getting married to a non-Parsi man. अभी तक तो कुछ आया नहीं होगा. आया भी होगा, there were no reports, unreported. If a Parsi woman marries non-Parsi man, then their society will not accept. ठीक है? सर, हाँ. सर पारसी अपने कंट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बैकग्राउंड से भी देखा जा रहा है. Right. तो गवर्नमेंट इस कानून को क्यों नहीं बदलने की कोशिश की कि जो प्रॉपर्टी है वो जो है ट्रांसफर वाला, और अभी के जो रिसेंटली गवर्नमेंट है वो सिर्फ जियो पारसी का एक छोटा सा प्लान ला करके उसके पॉपुलेशन पे ही से बढ़ाने पे काम दे रही है. ऐसा Right. क्यों? Yeah, see, according to, if we are talking in the sense of Parsi's personal law, okay, so it's totally the decisions of currently, जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ रहा है, okay, I'm talking about situations before uniform civil code. Once this will come, then everybody has to accept the fact and every law should get uniform. But here it's totally it is totally depend upon their leaders or their the jury, the one I discussed with you like 5 minutes back, the senior people, the respectable, the honorable people. If a person like Ratan Tata today, he should take a stand, okay, and just take a stand on behalf of his community and just say that there should be a common law, then I think every Parsis will agree with that. If more or less, not almost, more than half the majority of the Parsis will agree. But इनके यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है. There is nothing, no provision in that. So, right now, based on the articles in the Constitution, it is mentioned, Article 14, 15, and the rest of that article, which gives you right to practice their own religion. जब तक ये है, तब तक the government will agree that they don't want to change or they don't want to implement any other new laws. They want to remain as a conservative, पुराने law के तहत चलना चाहते हैं, and they are happy with that. Okay, basically इतना कुछ issue है भी नहीं, बहुत कम है. Otherwise वो एक women वाला issue है, वो भी कहीं ना कहीं हो जाता है, न्यूज़ में नहीं आता है, बट इट्स नॉट मच वाइड स्केल लार्जर इशू. बट येस, आई एग्री विथ योर क्वेश्चन, इट शुड कम. अगर किसी एक का भी राइट हिंडर हो रहा है, दैट्स हिंडरेंस ऑफ द नेशनल राइट. तो इट शुड कम विथ हियर, यहाँ से आना चाहिए. ओके, इसमें और कुछ खास है नहीं. रेस्ट जो इसका इंडियन सक्सेशन एक्ट है, it is the same, nothing as such based on 1925. Property वगैरह सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ नहीं है. And guardianship, I already told you guys that again there is no provision of adoption. ठीक है?
only guardianship and ward. Let us come on Jews. सर एक एक सवाल सर, हम्म, इनका एक और जो है वो अभी सोशल प्रॉब्लम ये आया था कि इनके डिक्लाइन इन मैरिज, तो डिक्लाइन इन मैरिज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, right. मगर अभी जो है ट्रेंड में जो है इस तरह से देखा गया है, इसका वजह सर? Yeah, decline in marriages, that we have to go into the substantial thing. Because we are talking about here legal system, अभी हम बात कर रहे हैं. अब इनके मैरिज के डिक्लाइन में या फिर इनके मे बी जो बच्चे हैं वो 1 से 2 हो रहे हैं या फिर एक ही बच्चे हो रहे हैं, इनका कोई प्रोविज़न है, ऐसा कुछ रीज़न इसका कुछ खास नहीं है. बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से if a Parsi family has 2 children, one is wife, one is daughter, another is child, ठीक है. So again child, अब वो child है, वो उसकी 2 बेटियां हो गई, लड़का नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक जेंडर गैप भी है, सेक्स रेशियो भी कहीं ना कहीं, बिकॉज द पॉपुलेशन इज वेरी लेस एंड आई एम नॉट श्योर दैट आउट ऑफ दिस 60,000 पॉपुलेशन व्हाट्स द सेक्स रेशियो. सो कहीं ना कहीं देर इज आई मीन दिस इज द रीज़न और दिस कुड बी अ रीज़न, कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है. ठीक है. और इनमें भी यार बहुत कुछ होता है दैट दे डोंट वांट टू गेट मैरिड विद रिच पुअर एंड ऑल, इसमें भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं इन देयर सोशल एंड इकोनॉमिकल रीजंस. ठीक है, बट विल नॉट गो दैट देयर इन डीप, इट्स जस्ट द लॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड. बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन, तो ये आप मार्क कर सकते हो एंड यू कैन सर्च अबाउट इट एंड देन यू कैन कम ऑन दिस कंक्लूजन बेस्ड ऑन. सर मैरिज लॉ तो इनकी जो है सही है सर, और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉब्लम है. तो मैरिज लॉ के अनुसार तो जो है सर मैरिज से होना चाहिए था, मगर मैरिज भी खुद में भी इन लोग नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का रिपोर्ट आया था सर. राइट. सी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी and marriage, they are interconnected. If they are marrying with the right party, they are marrying according to their religion and based on their culture. So the entire property and the marriage thing is going right. But the moment they are getting married outside their marriage, religion or their caste or their religious or identity, then everything will become haywire. Okay. ओके सर. तो अब आते हैं जूस पे. JUSIC, जूस. So what is the total population of Jews? I think it's around 10,000. So recently, their elections were held in India. Right. I am telling you this is the world population. India's population is only around 7 to 8K Jews. They are here. सर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. Almost negligible. इससे ज़्यादा तो हमारे गांव में रहते हैं लोग, एक गांव में 1 या 2-3 गांव मिला ले तो इससे ज़्यादा हो जाएंगे लोग. यस सर. क्यों चंद्रे? Yeah, true. Right. So what happened? So in 1948, when Israel picture, they reported or published a provision that they want to welcome the entire Jews in Israel. There were certain benefits because ultimately the country was for them. So many Jews, they migrated there from the world, across the world. Almost all the Jews, they got migrated there. ये बस बचे हैं. ठीक है. इंडिया की जो पॉपुलेशन है only 7 to 8,000 almost. Now, so let us see here what's the problem. So basically, इसमें भी 3 major cases हैं. First, we'll talk about Indian succession. Indian succession वही चलेगा 1925 का. आप लोगों को याद हो जाएगा, मैं इतनी बार बोल दूंगा इंडियन सक्सेशन है 1925, याद हो जाएगा आपको. ओके.
guardian and ward the same way. (1890) And third is marriage and divorce. You will be surprised to know that there is no law. So far, there is no law in their marriage and divorce. Okay. So, who were Jews? एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं. Jews कौन थे? Basically, यहाँ पे कर लेते हैं. Jews were basically, so ईसा मसीह इसी धर्म से निकले थे. Okay. So the Christianity was divided into two segments. One, we all know, that Old Testament and the New Testament. Jews follow this Old Testament, and Catholic जो Christians हैं वो basically they follow New Testament, जिसको हम Catholic Christian कहते हैं. And Jews, they are I mean with रूढ़िवादी कह सकते हैं, कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स, पुराने ज़माने के विचारधाराओं पे चलने वाले. दिस जीसस क्राइस्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो यहाँ से यहाँ था. ओके. ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, जूज ये हो गए. क्रिश्चियन की हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है. जूज वी हैव डन इट. एंड ऑलमोस्ट जूस के बारे में कुछ ऐसा डिटेल नहीं है. दो वे आर वेरी लिमिटेड, दे आर वेरी कंजर्वेटिव. Again, it applies, I mean, the same policy applies the way it has applied in Parsis, that they don't want any such, जैसे adoption वाली facility थी. They go by their consensus, their matrimonial court इनका भी बैठता है with decisions related to any civil laws. There's no court में कोई नहीं जाता है. Okay. In fact, there was a case in 2015-2016. A man, both husband wife, Jews family से थे. They went to court in Bombay High Court. They asked that they wanted to separate, but they do not have such provision under their religion that how will they separate. So फिर वो they have to go by that matrimonial court. अगर उन्होंने शादी की होती under Special Marriage Act of 1954 Special Marriage Act के तहत, should they were married, then they could approach court for divorce, and तब divorce मिल गया होता, irrespective of any religion, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Jain, Buddhism, Christian. Okay, that's up with the case. So let me quickly discuss here Muslim personal law. चलिए ठीक है. Are we all ready? Yes, sir. Okay. यहाँ पे लिख देते हैं Muslim personal law. And so before I should start Muslim personal law, I want to tell you something. There are certain provision in Muslim personal laws. They are very progressive, and India should adopt. UCC should adopt, take learning from that. There are some provision in Muslim personal laws that it should get repealed right now, right away, and they should learn from all other religion. तो दोनों तरीके की बातें we will understand. And so Muslim Samaj, the Muslim community, religion, they work on a legal system called Shariat. We have already discussed previously, okay, which is called Shariat. Okay. Under Shariat is just not very simple. I mean, it has big parts. एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, and then this one. Now,
The Shariat law, which is also called a divine law. Divine law का मतलब यहाँ ये होता है कि डिवाइन लॉ का मतलब ये हो जाए कि जो कानून ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है, ओके, विच इज़ वेरी प्योर, वेरी ऑथेंटिक. देयर इज़ नो सच what you can say, I mean bad things about whatever the Ishwar has, whatever the Lord he has made for us. Okay, first the Shariat law, the divine law, is been divided into 4 parts. First is Quran, the Holy Quran. दूसरा आता है हदीथ, हदीस या हदीथ, हदीथ हाँ. थर्ड, सर हदीस, हाँ इंग्लिश, नॉट हदीस. हदीथ इंग्लिश में लिखते हैं शायद, हदीस भी लिख सकते हैं, मुझे इतना चेक करना पड़ेगा. और ये होता है इजमा. ठीक है, सो ये 4 पार्ट समझ में आ गए. कुरान, हदीथ, क्यास एंड इजमा. These all constitute under Shariat laws. So basically, anybody wanted to say that what is Holy Quran? What is the speciality of Holy Quran? Why it is given so much importance? किसी को भी जल्दी से. All the provision of Muslim are written in this book, sir. Sorry, what did you say? All the provision of Muslims are written in these books. नहीं. Anybody would like to try? और कोई ट्राई करना चाहता है? प्रोविजंस तो उतने नहीं हैं. बेसिकली कुरान वो होता है दैट स्वयं ईश्वर ने, गॉड ने मोहम्मद पैगंबर, ईश्वर ने, गॉड ने मोहम्मद पैगंबर को ये ज्ञान अर्जित किया, ओके, विच इज़ कॉल्ड एन एनलाइटमेंट, दैट विद द हेल्प ऑफ मोहम्मद पैगंबर, ओके, हैव यू हर्ड अबाउट these words called Gabriel and Zibral? So with the help of Gabriel and Zibral, Muhammad, ये कौन आया? Vicky. Hello Vicky. Vicky, we have just started Muslim personal laws. आपके स्क्रीन पे ये रहा 4 ऑप्शन नहीं है, ये रहा 4 कॉन्टेक्स्ट. Muslim personal law is Shariat. Shariat is equal to divine law. It is divided into 4 parts. Okay, am I audible? Yes, sir. Fantastic. I was explaining what is Quran. Do you know what is Quran? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चलिए, बिना समय समाप्त व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं. So again, the divine God, with the help of Muhammad Paigambar, he and Gabriel and Zibral, 23rd ईयर तक कुरान लिखा गया. ओके, इसमें मेन भूमिका मोहम्मद पैगंबर की है, जिसको खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं जिसे. इन्होंने 23 साल तक कुरान को लिखा. ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने इनसे लिखवाया. ठीक है, ये होता है कुरान. अब इसमें क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन हदीस या फिर हदीथ, जो अभी हम बात कर रहे थे. Sir, voice is breakable. कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? Yes. ओके ओके. तो कुरान तक क्लियर था, राइट? आप यस नो बता देना. देन
ओके कूल, Yes, sir. देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड. नेहा, आप नोट्स बना रहे हो क्या? Sir, not today. I'm not at अरे home. मतलब कि आज कोई नोट्स नहीं बन रही, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, फिर कैसे होगा मामला? चलिए देखते हैं आप लोग की मेमोरी कितनी शार्प है. नेक्स्ट टाइम जब मैं सेशन लूँगा तो एक एक सवाल अंदर से पूछूंगा, ठीक है? हदीस या हदीत, बेसिकली ये होता है दैट एनीथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोहम्मद पैगंबर, एनीथिंग which is directly related to Muhammad Paigambar, and this has got divided into two segments. इसको बोलते तो हैं सुन्नत, लेकिन यहाँ पे सुन्ना पढ़ा जाता है. ये शिया सुन्नी वाला अभी नहीं आया है, अभी रुक जाइएगा. एंड दिस इज कॉल्ड डीड्स. डीड्स का हिंदी होता है कर्म, कृत्य. Okay, this is called kathan. Kathan you can say interpretation or discussion, and here you can say deeds तो लिखा ही हुआ है already, right? जो भी इनके काम किया है. तो basically there is a two thing, all right? One, hadith was divided into two parts, sunnat and deeds. This was the interpretation and this was the karma. अब हम आते हैं, अब तो मेरी स्क्रीन भर गई है, इसको चलो कोई नहीं. इसमें ये बताया गया है दैट मोहम्मद पैगंबर फ्रॉम हिज एंड व्हाट ऑल ही हैज सेड. सो बेसिकली द कुरान ये लिख रहे थे, तो मोहम्मद पैगंबर व्हाट ऑल ही हैज सेड, इट इज मेंशन हियर इन सुन्नत. एंड हियर what all he has done, it could be any act, it could be any step, ठीक है? कुछ भी हो सकता है कर्म में. अब क्या होता है दैट जो शरीयत है, बेसिकली इसमें फॉलो करने वाले दी एंटायर, आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शरीयत, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दी एंटायर थिंग. ओके, ये 1 2 3 4. अब इसमें दो चीज़ें आई, इसको मैं रब कर दूं, इसमें अब रब कर देता हूं. शरीयत में दो चीज़ें आई. पहली तो एक वो जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, शिया एंड सुन्नी डिफरेंसेस. दो कम्युनिटी, दो विचारधाराएं बेसिकली निकली यहाँ से, थॉट प्रोसेस या आइडियोलॉजी कह लो आप. ये हो गए शिया, ठीक है? तो बेसिकली फैसला यूँ हुआ दैट जब मोहम्मद पैगंबर नहीं रहे, जब वो गुजर गए, तो लीडर किसको बनाया जाए. ये क्वेश्चन था कि लीडर किसको बनाया जाए. तो कुछ लोगों ने कहा कि लीडर वो बनेगा जो उनकी फैमिली से होगा. कुछ लोगों ने कहा लीडर वो बनेगा जो योग्य होगा, हु इज एबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल somebody from his family, but he doesn't know how to move forward, how to read maybe Quran, or how to run the entire system, give the final judgment. But जो योग्य है, a person who knows everything, who knows how to preach, how to arbitrate, how to negotiate, how to maintain differences, ये हुआ बहस. Sir, like democracy or monarchy? हाँ, ऑलमोस्ट यू कैन से. तो सुन्नी जो हुए वो लोग हुए जो कहते थे कि परिवार से नहीं होना चाहिए, दैट द अथॉरिटी, दैट द हेड शुड नॉट बी फ्रॉम फैमिली. यहाँ नॉट लिख देता हूँ,
And Shia, they said they should be from family. Okay? बेसिक डिफरेंस यही है, इसको ध्यान में रखना और पूरी फिर दिस इज द बेस. ओके, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड वंस यू अंडरस्टैंड, वंस आई विल enter inside Muslim personal laws, then this is the basic to understand. So समझ लेना फिर से. डिबेट ये हुआ कि मोहम्मद पैगंबर के जगह कौन आएगा, अगला लीडर कौन होगा. फर्स्ट एक आया फैमिली मेंबर्स रहेंगे, दूसरा आया फैमिली मेंबर्स नहीं रहेंगे, जो ज़्यादा ज्ञान होगा, एडुकेटेड होगा, बुद्धिमान होगा, स्कॉलर होगा, वो होगा. सुन्नी वर द पीपल not part of the family, they were in favor of. Shia were the people, they should be from the family. Okay, इसको मैं remove करता हूँ quickly. And so we all know कि Shia की क्या population है. So in Muslim world population, पूरे world की, okay, any idea that what is the Muslim population in the entire country? जल्दी बताओ. अरे क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे बड़ा रिलीजन है यार, जल्दी बताओ. गूगल मत करना, गूगल नहीं चलेगा. 30 करोड़? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 160 CR. एंड आउट ऑफ दैट सुन्नीज, they are in majority. And now you have to think that what was Sunnis, कौन थे वो सुन्नी. अभी मैंने बताया 80 to 90%. Shia, these were only almost 25 crores जो कि ईरान में हैं. ईरान is the only country with Shia majoritarianism, वहाँ पे शिया का चलता है. ओके, अब यहाँ आते हैं हम. अकॉर्डिंग टू शरीयत, जो लोग सुन्नी कम्युनिटी के हैं, सुन्नी समुदाय के हैं, और जो लोग शिया समुदाय के हैं, ये थोड़े से कठोर हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, इनके रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं. ओके, दे फॉलो 3 तलाक. ये समझ में आ रहा है लिंक? मेजॉरिटेरियनिज्म, मेजॉरिटी में ही. शिया, दे आर लिबरल, they do not follow 3 talaq. So you will be surprised to know that in Iran there is no such triple talaq thing. यहाँ नहीं है. Understood? आगे बढ़ा जाए. Yes, no, maybe? Yes, sir. Okay, cool. Let me remove. Or before I should move towards Muslim personal laws, let me tell you something which is also an important thing, that the Sunni system, मेरी राइटिंग अच्छी हो गई यार पहले से, तुम लोगों ने बताया नहीं मेरे को. पायल, आप तो गाड़ी चला रहे हो, आप कहाँ से देख सकते हो मेरी राइटिंग? यू कैन ओनली लिसन. रीच्ड? अरे सुपर वुमेन, नाइस, बेहतरीन. ठीक है. सो अंडर सुन्नी सिस्टम देयर वर बेसिकली फोर. हम इन तीनों की बात नहीं करेंगे, ये किसी मतलब का नहीं है. यहाँ पे जो इंडिया में चलता है, जो पर्सनल लॉज इंडिया में चलते हैं, इज कॉल्ड हनाफी.
आप लोगों ने सुना होगा हनफी कम्युनिटी, हनफी समुदाय, हनफी धारा, हनफी सेक्शन। ओके, औरंगजेब ने जो शरीयत लॉज लिखवाए थे अपनी बुक में, इट इज बेसिकली हनफी। This law, this was the law which he was by the law and under, I mean, things are mentioned under Hanafi. He was ruling the entire region under his territory. Okay. और जो सुन्नी लोग होते हैं उनका इमामी धर्म होता है, इमामी धर्म। इस पे हम बात नहीं करेंगे, इस पे आप लोग सर्च कर लेना, इमामी धर्म। आई मीन शिया, सॉरी, शिया लोग होते हैं इमामी धर्म को मानते हैं। ये क्या होता है, यू गाइस कैन गो गूगल, सब कुछ मिल जाएगा। बट यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट हियर बिकॉज एवरीथिंग इन मुस्लिम पर्सनल लॉ इज स्टेट्स फ्रॉम हियर और स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट segment नहीं कहेंगे, but let me see how much your recall memory is all about. So let's go back in our first session maybe when I discussed about the history of UCC. So you all remember that जो criminal system था वो कैसे चलता था और जो civil system था वो कैसे चलता था। यस नो बोल तो समझ में आ जाएगा। इवन Yeah, the criminal system is violent, barbarous kind. हाँ, I mean not in that sense. So basically, you are right on your part, but not in that sense. So basically, before Brits came, in the entire region of Aurangzeb, जो मैंने discuss किया, that was governed under Shariat law. Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Christian, everybody was that. ठीक है? But जब वो आए, British आए, तो they amended many provisions. As I said, 1860 के बाद क्रिमिनल सिस्टम इंग्लिश लॉज के हिसाब से चलने लगा। रिमेंबर, क्रिमिनल शरिया, सिविल इंग्लिश नहीं हुआ था सिद्धार्थ। सिविल तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही चल रहा था, और हिंदू पर्सनल लॉ, सिविल मामले जितने भी थे that were even in the time of British that were governed through personal laws, but in criminality it was covered under English laws. ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ तक का हिस्ट्री हमें पता था। ठीक है, क्रिमिनल जो था वो 1860 के बाद इंग्लिश सिस्टम फॉलो करने लगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी कम्युनिटी है, एंड सिविल पर्सनल लॉ से चल रहा था। ऑलराइट, कूल। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है। और मेन मुद्दे पे आने से पहले, बिफोर, आई वुड लाइक टू एनलाइटन यू ऑल दैट अंडर हनफी कम्युनिटी, am I audible, guys, right? Yes, yes. Oh, BJ, so you can understand Hindi a little bit, right? I literally forgot. Yes, yes, of course, of course. शाबाश, चलिए, शुक्रिया। पढ़ाते पढ़ाते मुस्लिम पर्सन हो भी। खैर, उर्दू ज़बान मेरी बहुत अच्छी है। आई यूज टू रिसीव पोएट्स एंड ऑल्सो उर्दू इज़ गुड ऑफ माइन, बट आई लव दिस लैंग्वेज उर्दू। तहजीब की ज़बान होती है उर्दू। Yeah, such a beautiful language. All right, so now I think Siddharth or Surya, I could not recognize who just told me about the barbarian laws and all. But so जो हनफी laws थे ना, उनके जो criminal system था, so this I am talking about pre 1860. Okay,
बिफोर 1860 जो क्रिमिनल मामले थे इनके, दे वर वेरी ट्रेडिशनल. व्हेन आई से ट्रेडिशनल मीन्स ये वो एंशियंट एंड फिर अब मेडिवल में आ जाओ. आई मीन दे वर लिटरली वेरी ट्रेडिशनल एंड रेडिकल. ओके, फर्स्ट हुदूद. हुदूद में दो पार्ट्स थे. एक था, नहीं एक ही था शायद, जीना. इसके अंदर कई सारे आते थे. नहीं, दो था. या एक होता है थीफ, चोरी. हाँ हाँ, चोरी था. स्टीलिंग, एनीथिंग. बेसिकली under Hanafi community, okay, there were very strict criminal laws. Should anybody, let us say, any women, if found to be involved in an adultery, तो उसको पत्थर मार मार के they used to kill her. I'm talking about only women. Okay, no men. सर सर ये हनाफिया हाँ. स्कूल के अंदर ये हुदूद है. हाँ. Basically, they used to say that this Hanafi system and the criminal system, the punishment they are giving is against, I mean, the crime which they are doing is against the Lord's wish, the will. तो ईश्वर के विरुद्ध होते हैं ये सारे गुनाह जो ये करते हैं. जैसे women found under adultery, so they used to kill women पत्थर से मार के. सुना है ना वो गाना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को. यहीं से है. सेकंड, चोरी, विच स्टीलिंग और थीफ. यहाँ पे क्या होता था, शुड एनीबडी गेट इन्वॉल्व इनटू स्टीलिंग और थीफ, ऐसा कुछ है. इफ ही इज गेटिंग, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके आर्म्स काट दिए जाते थे. ठीक है, ये भैया भाई साहब हैं, तो इनके आर्म्स काट दिए जाते थे. और किसी किसी सिस्टम में फिस्ट, जो फिस्ट होती है हमारी, फिस्ट काट दिए जाते थे जस्ट बिकॉज स्टील किया है, चोरी किया है. ये पुरानी वेरी एंशियंट एंड मतलब बहुत पुरानी ये सारी चीज़ें हैं. बट till before 1860 they were prevalent, they were getting used in every, not in Muslim, under every religion. Just think about that. Okay, अच्छा अभी बताता हूँ. तो एक ये होता है. सेकंड आता है, आपको हुदूद समझ में आ गया है. एक होता है कियास, QISAS. कियास में क्या होता है कि आपसी मतभेद जब हो जाती थी तो उसमें सज़ा सुनाई जाती थी. आपसी मतभेद, इट कुड बी वायलेंस इन बिटवीन 2 पर्सन 3 पर्सन ग्रुप, उसमें फिर सज़ा सुनाई जाती थी. एंड दैट सज़ा कुड बी एनीथिंग, मन मर्जी की सज़ा होती थी, कुछ भी हो सकता था. दैट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द रॉन्ग डूइंग दे हैव डन. ठीक है. थर्ड आता था ताजिर. ताजिर एक्चुअली वो फॉर्म था कि शुड एनी ऑफेंस विच इज़ नॉट मेंशन्ड अंडर हुदूद और कियास gets recorded in Tazir, and then based on the judgment of Qazi and Mufti, वो फिर सुनाए जाते थे. ओके. एक बहुत ही गलत हुदूद में जो हुदूद का जीना था, उसमें एक लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट वाज देयर. So if any women, she was, रुक जाओ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ. So
if any woman, if she's a rape victim and she has to prove in the court of law, I mean in their system, Muslim system, जो उनके काजी का होता है, मुफ्ती का होता है, that she is being raped by 1, 2, 3, 4 people, तो पहले क्या उसमें करना होता था, that this victim, she has to prove that you should come with 4 eyewitnesses. And if she failed to prove, no problem, BJ, कोई बात नहीं. We will have things discussion on chat rooms as well. A comprehensive conclusion we will discuss there on Habitat chat rooms. ठीक है? So if she failed to prove her innocence, if she failed to prove that she is not being raped and all, so she will be punished under zina. कितना बेकार कानून था, मतलब how can, I mean, this is so natural that how can if an victim of a rape, she must have 4 eyewitnesses, and then she will go in front of these qazis and their jury, and then they will decide. And if she failed to prove that, then she will be punished under zina. I mean, betuka kanun, baseless. You guys must go and watch on YouTube about मुख्तारम बीबी या फिर माई ऐसे करके हैं. शी इज़ अ मुस्लिम वुमेन. बहुत बुरा हुआ इनके साथ, बहुत बुरा. आई मीन पाकिस्तान का है ये, पाकिस्तानी women. You guys must go and watch on YouTube, okay? Which eyewitness will be ever ready to witness something? Of course, that's the way they have made the law. सर हाँ बताइए. हेलो, अरे your voice is breaking, Chandra. If you are trying to speak, I cannot hear you. Okay, let's continue. So, you guys must watch this. Still, yes, sir, is it till now prevalent? नहीं, कहीं कहीं है. I agree, कहीं है, but not in majority. And I'll tell you why. You guys must thank at least few of our Indian reformers and English people that in 1860 the criminal law was working as per the English laws. कम से कम मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ. I must thank William Bentinck, Lord Dalhousie, and those all social reformers, even Raja Ram Mohan Roy and all, that these are such, sir, all these punishments, Hanifiya or all Sunni community, हाँ, I mean Sunni, ये सब सुन्नी हैं. These all Sunni community and Hanafi community. Hanafi is the वो मान्यता है धर्म की, उनके laws हैं. Sunni is the community. Yeah, even I am proud to be an Indian. And every Muslim Indian should be proud to be an Indian as well. Okay. हाँ. So, right. So, yes, मुख्तरम बीबी इनका ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है? Just because there was a dispute in between 2 parties and she was called and she was being raped by 4 men and 10 men were watching the rape, so that she will get, the entire thing will get justified. In the court of law, nothing has happened. And I don't want to reveal everything. Go and watch after this session. मुख्तरम बीबी पाकिस्तान का, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं. और
एक छोटा सा और समझ लेते हैं एंड देन वी विल गो डायरेक्टली ऑन मुस्लिम पर्सनल लॉज. सो बेसिकली ये जो सिविल शरीयत का पूरा कानून था, which was divided into two segments. Shariat was divided into criminal and civil. Criminal. तो criminal तो almost done था, right? Because from 1860, everything was under English law. Nothing could be made here. Nothing could be changed here. And do you all know? बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ आपको here. That why? Let me ask you guys that why did not any Muslim member objected when the entire East India Company converted criminal laws from Muslim, from Shariat to English? Why did not everybody objected? Tell me. But they have objection in civil, but they do not have any objection in criminal laws, and they happily and gladly accepted English law under their criminal system. Why? क्योंकि उनको भी पता था कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्रिमिनल punishment है is very radical, is like barbarian, as somebody has just said, is next level, is like more, I mean next level to a third degree as well. सबको पता था. Even the most रूढ़िवादी person of Muslim community was against it, but nobody used to tell, because कोई अगर बोलता तो फिर यही कहते कि खुदा की मर्जी के खिलाफ बोल रहा है. But fortunately, after 1860, the criminal thing, when IPC came, everything became uniform under criminal law. Okay, so did you get the gist? Yes, no, बताइए कुछ. Neha, Siddharth, Surya, is everything fine? Yes, sir. Yes, sir. Just to understand, I see Mukhtar case is something new, but still Shariat law is followed in any country like Pakistan. Not many countries. Not now in many countries. I'll tell you, when we will talk about Muslim personal laws, their difference, then you will come to know कि ये इंडिया में ही क्यों है. Why the hell these laws are in India? Because majority of the laws which are already get uniformed in Pakistan, in Egypt, in Bangladesh, majority of the law, and they are very well formed and uniform. But why the hell in India it has not been changed till yet? ठीक है, so which will be discussed. That's a good question. तो ये था. अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्रिमिनल वाले को, एंड लेट्स डिस्कस ऑन द सिविल पार्ट. इरेजर को और मोटा कर देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं. Okay, so the Muslim personal law, you remember day before yesterday, or not day before yesterday, हाँ, on Saturday शायद मैंने आपको बताया था कि there are two systems. The major reform happened under Muslim law was after 1937. याद है कुछ? नहीं, चलो बताता हूँ मैं. So the Muslim Personal Law Shariat Act came in 1937. Remember, I told you guys, this act was nothing but ये यही बता रहा था that all the civil laws, बस ये बताने के लिए ये एक्ट लाया गया था. All the civil laws of Muslim will be followed under Muslim personal laws, that is शरीयत लॉ. ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें. इसके बाद 1939 में आई थिंक या 37 में एक लॉ आया. 1937 में आया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 39 में, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट. दैट वाज ए गुड एक्ट. उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. फर्स्ट अंडरस्टैंड हियर. ठीक है,
इनको यही बोला था इन दिस लॉ दैट इट विल बी अप्लाइड इन द लैंड ऑफ इंडिया इन द इंडियन रीजन जहाँ पे भी है, ओके। इसमें ऐसा, इस लॉ में इन 1935 का जो लॉ आया था, इसमें कोर्ट का कोई मेंशन नहीं था। देयर वर नो मेंशंस ऑफ कोर्ट, देयर वर नो प्रोसीजरल थिंग्स वर मेंशन दैट हाउ द थिंग्स विल गेट फैसिलिटेटेड एंड ऑल। दो चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, काजी एंड मुफ्ती। काजी used to be those scholars, Muslim scholars, legal scholars. They used to arbitrate, adjudicate, negotiate, ये सब वो करते थे, रिकन्सिलिएट वगैरह ये सब ये करते थे। कोई भी इशू होगा तो काजी, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी? सुना आपने? ये वही काजी हैं, ये वही काजी हैं। And should there be any case which is outside from the purview of this qazi, तो ये आते थे मुफ्ती। मुफ्ती क्या करते थे? फतवा जारी करते थे। कोई भी अगर नया केस होगा ना, तो मुफ्ती यूज टू रिलीज फतवा, ठीक है। मीन्स कोई नया मामला आया है, सबको पता चल जाता था, ओके दिस इज अ समथिंग न्यू मामला केम इन द हाउस। व्हाट इज फतवा? एनीबडी? कोई बताएगा फतवा क्या होता है? पेटिशन? Sir, right or wrong according to the Muslim law? हाँ, सॉरी, Right and wrong according to Muslim law? इसी से रिलेटेड, फतवा से रिलेटेड, आई टेल यू समथिंग। फतवा आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल, एक नहीं 4 आर्टिकल हैं। 133, सॉरी हाँ चलो इसको 2 कर लो, 133, 134 एंड 228। आप लोग बताओगे, मैं बताऊं क्या है ये आर्टिकल 133? एनीबॉडी? सर्च करने लगे क्या? This talks about judicial interpretation. Okay. Judicial interpretation. So basically क्या होता था कि जब सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट को जब बात समझ में नहीं आती थी, तो दे यूज टू आस्क हाई कोर्ट की बॉस आप इसका इंटरप्रिटेशन कर दो एंड देन वी विल सॉर्ट आउट एंड वी विल गिव द जजमेंट। दिस इज वे इट हैपेंस इन सुप्रीम कोर्ट। दे गिव judicial interpretation of certain act or the amendments or the articles, things mentioned in constitution, and based on the interpretation, the lower court, high court, they give judgments, right? हाँ ना बोलिए, yes, no? Yes, sir. हाँ, thank you. फतवा भी कुछ ऐसा ही होता था, that in Muslim personal law, that should there be any new case, should there be any new problem, then the mufti, he will release fatwa, and with the help of fatwa, जो भी उनके सुप्रीम लीडर होते थे in Muslim community or maybe in Sunni और हनाफी community, हनाफी teachings, जो भी लीडर होते थे, they used to describe that what that new act, new situation is all about, and based on their interpretation, Mufti used to deliver the judgment. Clear and concise? Okay. So, सिविल मामलों में is like I mean काजी is equal to सिविल था वहाँ पे सिस्टम, नो कोर्ट, काजी सब कुछ कर लेंगे, ओके।
तो रिमेंबर मैंने अभी 1937 की बात की थी, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, वो एक्चुअली 1939 था, मैंने वही कंफ्यूज हो रहा था। इसमें दो चीज़ें आई थी। पहला था एक्चुअली मैंने आपको बताया था दैट 1935 का सेक्शन 5 को निकाल के ये बना 1939 एक्ट। This was a kind of progressive first time in the history of Muslim personal laws. First time, some progressive law or act was passed. At least थोड़ा empowerment दिया women's को तलाक या divorce के मामले में। ठीक है, फर्स्ट ये था। इसमें बस ये लिखा है कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप तलाक ले सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम विमेन कैन फाइल डाइवोर्स अगेंस्ट हस्बैंड। बस इसमें जो चीज़ नहीं थी वो मेंटेनेंस नहीं थी, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। सो हम आते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड समझाना ज़रूरी था मेरे लिए, एंड देन आई कम हियर। अदरवाइज वो कुछ समझ में नहीं आता। एवरी पॉइंट would have gone in here and there. Muslim personal laws here was divided into 3 segments: marriage, divorce, maintenance. You guys tell me one thing. It's 8:20 now. Shall we pause here? We'll come back tomorrow again, or shall I continue? So maybe how much time this needs further? यार आपको एक्सप्लेन करने में आई थिंक 20 मिनट्स तो लग जाएगा मुझे। Okay, sir. I think let's go with the majority. Right, I know. It's going to be too much. But yes, in our next session, कल ले लूँगा और एक घंटे के अंदर वो सब फिनिश कर देंगे सब कुछ, because tomorrow we will cover Muslim personal law, marriage, divorce and then some judicial aspect related to it. वो popular cases हम बात करेंगे with related to religious freedom, then few important cases with related to Muslim women, राजीव गांधी का क्या इसमें था स्टेप एंड ऑल, शाह बानो केस, जितने भी मुस्लिम से शायरा बानो वगैरह वी विल डिस्कस। ओके, लेट्स पॉज हियर। जाइए आप चाय वाय पी लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, एंड वी विल मीट टुमारो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सर आई फेस लो इंटरनेट कोई बात नहीं, लो एनर्जी, लो बैटरी, लो इंटरनेट। ठीक है, आई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। Thank you.